This conference will now be recorded. This Go ahead, conference ma'am. will now be recorded. Okay, okay. My screen is visible to all. Hello. Yes, ma'am. But yes, ma'am. It is visible for all. Okay, okay, done, sir. Okay. Sorry for inconvenience. Okay, okay. Can I start this, sir? This session, sir? Yes, ma'am. You Yes, can Can I? ma'am. start. Go ahead. Okay, Go done. ahead. Okay. Hello, everyone. Good evening. I am Preeti Pandey, Assistant Professor of Microbiology, and today I am here to take this session and talk about bacterial anatomy. Uh, I know this is a basic topic, but it is a very important as a to know as a microbiologist because bacterial anatomy अगर पता होगा, so easily we differentiate gram positive and gram negative bacteria. Okay, so start session. Okay, okay. This is the content of the session. Okay, and what is prokaryotes? Prokaryote cells are one of the categorized. Okay, bacteria is commonly known as prokaryotes. Okay, जो आपके prokaryotes है, that means pro means before and karyo means nucleus. Okay, you all are know about bacterial structure. Okay, बैक्टीरियल जो भी स्ट्रक्चर्स है उसका आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ओके, ओके. So what is the bacteria? Bacteria are a microscopic single cell organism. Okay, ये सेल कैसा है? स्मॉल एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर है. ओके, जो कि इजीली हम नेक्ड आइज से नहीं विजुअलाइज कर सकते, सो दैट वी आर यूजिंग माइक्रोस्कोप. ओके, एंड देयर स्ट्रक्चर we are measure in micrometer. Okay, so basically, bacterial size are typically 0.5 to 5 micrometer in a length. Okay, and these are the shapes and arrangement of bacterial structures. Okay, first one is the coccus. Round shape is a coccus shape, rod shape or bacillus, and then spiral shape. Two coccus pair in that's called diplococci. Okay, there are various and variety of shapes of bacteria. Okay, uh, here a few examples of bacteria. So having different shapes. Like first one is a streptococcus. It's a pair of coccus. Okay, and another one is the streptococcus aureus. Okay, streptococcus aureus is a one type of coccus shape, but having in a cluster form. Okay, in a group form. It's look like grapes. Okay, then another one is a vibrio. Vibrio is like a comma shape. Okay, and then helicobacter is an example of spiral. Okay, these are the various structure and shape of the bacterials. Okay, and and okay, these are the basic and ultrastructure of a bacterial cell. Okay, uh, outermost layer is the capsule.
then cell wall, and then plasma membrane. Okay, bacterial cell are coated and enveloped by 3 layers. फर्स्ट वन जो रहेगा वो आपका कैप्सूल है. ओके, देन आपका सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन जो है आपका कैप्सूल वाला जो रीजन रहेगा उसके ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. वो क्या है? वो कुछ और नहीं, प्रोटीन स्ट्रक्चर है. फर्स्ट वन इज फ्लैजिला जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड देन स्मॉल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो है पिलस. ओके, एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर कैसा होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा. ओके, साइटोप्लाज्म है जो कि फ्लूइड है, एंड राइबोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स. ओके, these are the structure, ultra structure of bacterial cell. Okay, अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि ये जो भी आपका टिपिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर उसका स्टडी करेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है. ओके, okay, these are the general features of the prokaryotic cells. Okay, range जैसा कि मैंने बताया 0.1 to 5 micrometer. Okay, like a nucleus or other membrane bound organelles. Okay, then one single space inside the cell. Okay, and another one is a domain bacteria and archaea are classified prokaryotes. As we know, 3 डोमेन्स हैं क्लासिफाई जो किए गए हैं. ओके, जैसे कि आपको पता है फाइलोजेनेटिक ट्री, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. ओके, उसमें से वन जो है आपका डोमेन वो है बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, 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 नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ओके, जिसे सेल्युलर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. ओके, जनरलाइज स्ट्रक्चर की बात की जाए. ओके, सो जैसा कि मैंने बताया उसका जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले कंसिडर कैसे किया जाएगा? आउटर मोस्ट जो लेयर है कैप्सूल, उसके ऊपर जो रहेगा आपका टेल लाइक स्ट्रक्चर वो है फ्लैजिला. ओके, देन आपका आएगा पिलाई. ओके, कोई मुझे बताएगा पिलाई को दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पिलाई? चैट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं. एनीवन कैन नो? ओके, सेक्सपेली. ओके, एनीवन another name of pili? Okay, good. Shrivali, yeah, good. Okay, Fimri is the correct answer. Okay, good, correct. Okay, let's start generalized structure. Okay, फर्स्ट इज सेल अपेंडेजेस. ओके, जो भी रहेगा आपका स्ट्रक्चर जो कि अटैच्ड है आपके सरफेस पे, बैक्टीरियल सरफेस पे, और वो सारे जो आएंगे वो किस में आएंगे? सेल अपेंडेजेस में. ओके, फर्स्ट जो है फ्लैजिला की बात कर रहे हैं. ओके, फ्लैजिला क्या है? वो हेल्प करता है, उसका फंक्शन क्या है मेन? तो इट्स हेल्प टू मूवमेंट ऑफ सेल्स. ओके, एंड उसका जो अगर स्ट्रक्चर्स देखें सो कैसा है? 3 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट वन इज द फिलामेंट, एंड सेकेंड इज द हुक, and third one is the basal body. ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, it is the structure of flagella and how to connect the cell, bacterial cell. Okay, flagella is the first component is the filament. Filament is a whip-like helical structure, and next one is the hook. Hook hold the filaments. Hooks जो है वो आपके filament को, जो आपका bacterial cell है उसमें hold करके रखता है. Okay, and next property is attached to the rod portion of the basal body. Okay, and third component is the basal body, a complex structure consisting of a rod, 4 ring and motors connecting within the cell envelope. Okay, basal body जो रहेगा आप जैसा कि फिगर में देख रहे हो, ओके, रॉड एंड रिंग है. ओके, ये जो रहेगा पोर्शन वो कैसा रहेगा? थोड़ा बाहर की तरफ और थोड़ा इनसाइड द सेल, जो कि होल्ड करके रखता है हमारे फिलामेंट या फिर फ्लैजिला को आपके सेल्स के साथ. ओके,
Okay, next property is of basal body is the activation of a motor cause the hook and therefore the filament to swivel. Okay, so उसके movement के लिए जो help करता है वो है basal body. Okay, and then another one is the periplasmic flagella. Okay, okay. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो फ्लैजिला है उसका जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के सराउंडिंग में उसमें भी वेराइटीज हैं. ओके, सिंगल होगा, बहुत बार ऐसा होता है. इसके अलावा जैसे कि सिंगल टेल आपने देखा, ओके, फ्लैजिला का. इसके अलावा और किस तरीके का फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है? आपने अलग अलग बैक्टीरियाज देखे होंगे. बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ एक एंड पे फ्लैजिला है, किसी बैक्टीरिया के अंदर दो एंड्स पे फ्लैजिला होते हैं. ओके, दो एंड्स पे अगर फ्लैजिला है सो वैसे फ्लैजिला को क्या बोलेंगे या फिर वैसे स्ट्रक्चर्स को? एनीवन? ओके, ओके, ओके. बहुत सारे अगर हैं जैसे कि बोल सकते बहुत सारे फ्लैजिला जो है वो सराउंडिंग है अपने बैक्टीरियल सेल्स के सराउंडिंग में है, सो वैसे स्ट्रक्चर्स को. ओके, गुड. और कोई ट्राई करना चाहेगा? ओके, पेरिट्राइकस क्या है? यहाँ पे सबने अलग अलग आंसर्स दिए हैं. डाइनोफ्लैजिला, लोफोराइकस, एम्फिट्राइकस. ओके, सो पेरिट्राइकस क्या होगा? यस, गुड, गुड. यस, पेरिट्राइकस दैट मीन्स जो फ्लैजिला है वो हमारे जो बैक्टीरियल सेल है उसके पूरे सराउंडिंग जो लेयर है उस पे होगा. ओके, ओके, गुड. ओके, ओके. Periplasmic flagella, a type of modified flagella and found in a special bacteria known as the spirochete. जो spirochetes है उसमें ही ये वाले जो flagella है वो present होते हैं, periplasmic flagella. Okay, and consist of filament and hook, but the entire structure is located between cell wall and membrane. Okay, and C is a fimbriae. Okay, fimbriae जैसा कि बताया, small hair like fibers that on the surface of bacteria. Okay, and tend to stick to each other as well as other surface. Okay, ये भी attachment का काम करेगा. जैसा कि बताया, fimbriae is a one type of villi and its structure is like a small hair like structures. And next one is the pilus. Okay, जैसा कि अभी बहुत लोगों ने आंसर दिया था, पिलस जो था सेक्स पिलस करके जो आता है जो कि कंजुगेशन में हेल्प करता है. ओके, पिलस क्या है? कुछ सेल्स जो होंगे उसके अंदर पिलस होगा. दो सेल्स जो है बैक्टीरियल सेल्स, जैसा कि कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एफ प्लस जीन और एफ माइनस जीन. एफ प्लस जीन जो है वो क्या करेगा, अगर कुछ बैक्टीरिया जो होंगे उसके प्लाज्मिड में एफ प्लस जीन होता है और कुछ बैक्टीरियाज में नहीं है. ओके, अगर उसमें नहीं है तो क्या करेंगे, जो आपका सेक्स पिलस है, सेक्स पिलस से क्या होगा, दो बैक्टीरिया कनेक्ट होंगे एंड एफ प्लस जीन जो है एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर होता है. सो ये फंक्शन है पिलस का. ओके, ओके. सेकेंड स्ट्रक्चर इज सेल्यूलर एनवेलप्स. ओके, इससे पहले जो देखा वो हमने क्या देखा, जो भी सेल अपेंडेजेस है, मीन्स की जो भी लाइक फ्लैजिला एंड पिल्ला है वो जो कनेक्टेड है हमारे सराउंडिंग जो भी सेल्स की जो भी सरफेस है उससे. ओके, अब जो आता है सेल्यूलर एनवेलप, ये जो है आपका लेयर लाइक ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स किसे कहा जाता है?
ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट लेयर में है या फिर इनर साइड है? एनीवन? ओके, ऑन सेल वॉल. ओके, अबोव सेल वॉल. ओके, glycocalyx and capsule both are similar? No. Why? What is the difference between glycocalyx and capsule? आपको स्लाइड में दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल. स्लाइम लेयर जो है इट्स अ ग्लाइकोकैलिक्स एंड कैप्सूल इज अ another layer of bacterial envelope. Okay, so what is the difference? Okay, okay, I tell you. Okay, capsule is made up of polysaccharides and polypeptide, and slime layer is only made up of polysaccharides. So it's look like a slime layer, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है. Okay, so it's only made up of polysaccharides. Okay, and glycocalyx जो है वो both are same, but the composition of material is different. Okay, okay. Glycocalyx referred to as a gel-like outer covering of some bacteria. There is a two types, slime layer and capsules. Slime layer is a diffuse and irregular structures, जैसा कि फिगर में है. Okay, capsule is a distinct and gelatinous structure. Okay, and function. What is the function? So first one is a protection against phagocytosis. जो भी phagocytosis process है वो जैसे ही engulf करने के लिए बैक्टीरिया को आएगा, so जो आपका कैप्सूल्स है वो वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. Okay, and then okay, then encapsulated bacteria and tend to have a greater phagogenicity because of this. Okay, कैप्सूल्स की वजह से वो क्या करता है, जो भी एनगल्फमेंट का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो हेल्प adhere to the its environment too and other bacteria. Okay, ये जो है वो अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करता है. ओके, इसके अलावा जो है वो क्या है इसका रोल? Okay, it's allow the bacteria to stick large amount of substance including tooth, enamel and hospital equipments. Okay, ये जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि स्पायरोकिट वगैरह जो है ये जो रहेंगे वो कैसे होता है, इजीली हमारे माउथ में टूथ वाले जो एरिया है वहां पे इजीली अटैच्ड हो जाते हैं. ओके, सो किस वजह से? सो उसका जो रहेगा या तो पिलस वाला जो स्ट्रक्चर है यानी कि आपका फेम्ब्रे वाला वो हेल्प करता है, एंड अनदर वन इज ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, okay, another structure, सेलुलर एनवेलप का जो अनदर स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल. सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज इम्पोर्टेंट. ओके, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो है उसमें कैसा है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव इट्स लुक्स लाइक सिमिलर बट कंपोजिशन इज डिफरेंट. ओके, ग्राम आपको जैसे पता होगा ग्राम स्टेनिंग जो है वो क्यों करते हैं, उससे इजीली पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव कौन से कलर का है एंड ग्राम नेगेटिव कौन से कलर का है. ओके, ग्राम पॉजिटिव जो रहेगा वो उसको और ग्राम नेगेटिव को उसको डिफरेंशिएट करने का जो मेन जो प्रिंसिपल है उसके सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है. ओके, ओके, नेक्स्ट लेयर इज अ सेल वॉल. ओके, सेल वॉल जो है वो आपका NaM and Na से बना होगा. ओके, कंपोनेंट है मेन. ओके, जो आपका जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव उसमें पेप्टिडोग्लाइकन रहेगा. ओके, एंड टिकोइक एसिड रहेगा. क्लियर? एंड आपका जो नेगेटिव जो है ग्राम नेगेटिव उसमें पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम अमाउंट में रहता है, लेस अमाउंट में,
एंड आपका जो लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो रहेगा वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये जो डिफरेंस है, जो मेन जो है लिपिड कंटेंट, ये मेन डिफरेंस है कि उसमें जो है कलर स्टेन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पहले, और प्राइमरी स्टेन, एंड जो आपका जो रहेगा ग्राम नेगेटिव वो क्या करता है, स्टेन जो है रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट जो कंटेन करता है लिपिड्स का। ओके ओके, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव के बारे में बताया, ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें मेन जो पेप्टिडोग्लाइकिन के जो कंपोनेंट्स है NAM and NAG। NAM is a N-acetyl muramic acid and NAG is a N-acetyl glucosamine। ओके, कोई मुझे बताएगा कि NAM and NAG जो है वो कौन से बॉन्ड से लिंक होता है, कौन से लिंकेज होगा, कौन सा लिंकेज होगा? ओके, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड है जैसा कि लाइक कुछ रिप्रेजेंट करता हो, 1 3, लाइक ऐसा कुछ 1 4 समथिंग बॉन्ड? ओके, गुड। बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ये जो है इज अ करेक्ट आंसर। ओके, गुड गुड। ओके, जो NAM और NAG के बीच में जो लिंकेज रहेगा वो बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेगा। ओके, इट इज अ कोवेलेंटली बाउंडेड टुगेदर फ्रॉम ग्लाइकेन चेन। ओके, एंड इट्स adjacent glycan chain are held together by the tetrapeptide chain attached to NAM component. Okay, ओके, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जो ग्राम पॉजिटिव रहेगा उसका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो थिक है। ओके, एंड आपका जो लिपिड कंटेंट है ग्राम पॉजिटिव में कम रहेगा, और ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा एंड पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर कम होगी। ओके, इस फिगर से आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ओके, this is the figure of gram positive and gram negative cell wall of bacteria। okay, राइट साइड पे ग्राम नेगेटिव है एंड ग्राम पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे। ओके, उसका जो आपका जो कंपोजिशन दिख रहा है वो देखो। फर्स्ट वन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है। ओके, देन सेल मेम्ब्रेन एंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके, एंड ग्राम पॉजिटिव में कैसा है, थिक लेयर है आपका पेप्टिडोग्लाइकन का, वहीं ग्राम नेगेटिव में जो है वो थिन लेयर है। ओके, एंड ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा, टिकोइक एसिड। ओके, एंड ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होगा। कोई मुझे बताएगा टिकोइक एसिड की वजह से ग्राम पॉजिटिव में क्या मतलब, क्या बेनिफिशियल है? What is the function of teichoic acid in gram positive cell wall? ओके, टॉक्सिसिटी। और कोई? Okay, teichoic acid is bind with which ion?
नो, सोडियम नहीं है। टिकोइक एसिड जो है वो फॉस्फेट कंटेन करता है, स्टोर करता है, बट जब बाइंडिंग की बात की जाए, जब जो आयन जो है टिकोइक एसिड अगर कौन से आयन से बाइंड होता है, तब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका मैंगनीज आएगा। ओके, एमजी आयन जो है वो टिकोइक एसिड जो है वो बाइंड होता है। ग्राम पॉजिटिव का जो टिकोइक एसिड जो है वो किससे बाइंड होगा, तो एमजी आयन, मैग्नीशियम आयन से वो बाइंड होता है। ओके, फॉस्फेट जो रहेगा, फॉस्फोरस जो रहेगा वो स्टोर करता है। ओके, ओके, गुड। ओके, ये जो था जैसे कि मैंने बताया, ग्राम स्टेनिंग जो रहेगा, ग्राम स्टेनिंग से वी आर इजीली डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, जैसे कि आप ग्राम स्टेनिंग में आपको पता ही होगा, क्रिस्टल वायलेट जो है वो स्टेन ओके, जो क्रिस्टल वायलेट जो स्टेन है वो ग्राम पॉजिटिव जो है इजीली एब्जॉर्ब करेगा। ओके, जो पेप्टिड इसमें जो आपका जो पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एंड देन वो लॉक कर देता है उस स्टेन को। एंड जैसे ही हम उसके ऊपर डीकलराइजर ऐड करते हैं, सो वो डीकलराइजर ऐड होने के बाद भी वो रिमूव नहीं होता स्टेन। ओके, बट ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड का जो स्ट्रक्चर है आपका एलपीएस वाला, वो कैसा होता है, उसके पोर्स जो है वो डीकलराइजर ऐड करते ही वो ओपन हो जाते हैं और जो भी स्टेन रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, सो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो ग्राम पॉजिटिव वाला जो है लेयर वो कैसा रहेगा, उसका सेल वॉल वो कैप्चर कर लेता है उस सेल्स को, जो आपका क्रिस्टल वायलेट है स्टेन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड ग्राम नेगेटिव में वही जो स्टेन है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, जैसे ही हम सेकेंडरी स्टेन ऐड करते हैं सेफ्रेनिन, ओके, सो क्या करता है, वो जो स्टेन है वो ग्राम नेगेटिव वाला जो लेयर है सेल वॉल का वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दैट्स वाई ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल दिखता है एंड ग्राम नेगेटिव जो है आपको पिंक दिखता है। अगर मैं पिंक की जगह अगर ग्रीन स्टेन ऐड करूं ग्राम नेगेटिव के लिए, तो वो ग्राम नेगेटिव वाला जो है वो ग्रीन कलर भी एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज वो क्या है, जो भी आप स्टेन ऐड करोगे वो इजीली एब्जॉर्ब करता है। बट हम स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, ग्राम पॉजिटिव के लिए क्रिस्टल वायलेट यूज किया है एंड ग्राम नेगेटिव के लिए सैफ्रनिन। अगर सैफ्रनिन की जगह अगर मैं ग्रीन कलर का कोई भी स्टेन डालती हूँ लाइक मैलेकाइट ग्रीन या फिर कोई और भी, तो आपको हो सकता है आपको जो ग्राम नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीन कलर का दिखे। ओके, ओके, यहाँ पे क्लियर है सबको, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है उसमें क्या है। ओके, और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को स्टेनिंग के थ्रू। ओके, ओके, डन। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो आपका रहेगा, जैसा कि बताया आपका आउटर मोस्ट लेयर कैप्सूल है, देन सेल वॉल। ओके, और आपका फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो जो है वो किससे बना हुआ है, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। ये भी क्या करेगा, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को। बहुत बार ऐसा आपने शायद सुना होगा कि फ्यू बैक्टीरिया हैविंग नो सेल वॉल। ओके, सो सेल वॉल नहीं होता है बट फिर भी वो सरवाइव करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो provide the protection from osmotic environment. Okay, so like protoplast, spheroplast, it's an example of no without cell wall. Okay, don't have, they don't have cell wall. Okay, okay. Another structure is the inbuilt inside the cell wall, bacterial cell wall structure is the mesosome. Uh, anyone can heard about mesosome?
What is the function of mesosome? Previously, you are studied about the mesosome. Okay. Anyone? Absorption. Okay. Okay, good. Replication and also help in replication process. Okay, good. Okay, mesosome is only present in prokaryotic cells. It's not present in eukaryotic cells. It is a work like mitochondria. Okay, eukaryotes में जैसे कि mitochondria, it's help in respiration and store the energy. Okay, so it's behave like mitochondria in prokaryotic cells. Okay, it is help to respiration, replication process, cell division. Okay, and it is also help in sporulation process. Okay, इट्स स्ट्रक्चर जो मेसोसोम का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा है कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा और हमारे जो भी सेल वॉल जो है आपका बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर साइड इनबिल्ड रहेगा, इनकॉइल्ड रहेगा. ओके, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसा रहेगा. ओके, ये क्या करेगा, ये स्मॉल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से एंड इट इज हेल्प इन रेस्पिरेशन. ओके, and it is only present in prokaryotic cells. Okay, and it is it behave like a mitochondria in prokaryotic cells. Okay. Another function of cell membrane is believe increase the surface of area for membrane activities and function primarily in controlling the movement of substances into out of inside the cell. Okay, as you know. Okay, जैसा कि जो भी आयंस रहेंगे वो कैसा है कि अंदर एंट्री या फिर बाहर जो हम एग्जिस्ट करते हैं उसका जो परमिएबिलिटी है या फिर जो एंट्री का जो भी आपका जो प्रोसेस रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, बिकॉज फ्यू मेम्ब्रेन्स आर परमिएबल, सेमी परमिएबल, so they allow some selected solute and solvent to movement inside and outside the cells. Okay. Okay, internal structures. Okay, internal structures is a cytoplasm, chromatin bodies, plasmid, ribosomes, and your inclusion body. Okay, cytoplasm is a fluid within the cells. Okay, जो भी fluid जो रहेगा आपके cells का वो क्या है, वो cytoplasm है. Okay, it is a primarily water containing dissolved nutrient and waste. Okay, and it serves as a site of numerous metabolic reactions. Okay, जो भी metabolic reactions होंगे वो आपके cytoplasm में ही होंगे. Okay, because the prokaryotic cell is a simple cell, they don't have separate organelles to function for the activities and for metabolic reactions. Okay. Next one is a chromatin bodies. It is a single and circular loop of essential DNA. Okay, and aggregation, a dense area of the cell known as a nucleoid. Okay, and third one is a plasmid. Okay. Okay, plasmid is a extracellular DNA of the cell. Okay, and its arrangement in isolated loop or attachment of the chromatin body, and it is also help in a replication process. Okay, and it can allow to exchange during conjugation. जैसा कि मैंने बताया प्लाज्मिड में F+ जीन है जो कि अगर कुछ बैक्टीरियाज में नहीं है, सो क्या करता है, जो भी प्लाज्मिड है वो अलाउ करता है F+ जीन को ट्रांसफर करता है वन सेल टू अनदर सेल्स. ओके, एंड आपका जो प्लाज्मिड रहेगा वो कैसा है, स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है. ओके, इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए. ओके, एंड इट्स आल्सो हेल्प इन रेप्लिकेशन प्रोसेस. एंड जो भी नाउअडेज जो भी आरडीएनए जो भी टेक्निक है, रिकम्बिनेंट डीएनए जो भी
टेक्नोलॉजीज है, इट्स ऑल अबाउट एंड डिपेंड ऑन प्लाज्मिड एक्टिविटीज। ओके, जो भी आपका जो सेगमेंट रहेगा, जो भी आप इंसर्ट करते हैं कुछ नया अगर आपको बनाना है, सो आप कुछ चेंजेस करके प्लाज्मिड में ही कुछ सेगमेंट्स जो है इंसर्ट करके हम कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। ओके, रिकम्बिनेंट अगर करना हो तो प्लाज्मिड इज नेसेसरी। ओके, and ribosomes. In prokaryotes, 70 as ribosomes, and in eukaryotic cells, they have 80 as ribosomes. Okay, it is the site of protein production. Okay, जो भी rRNA वाला जो पोर्शन रहेगा आपका राइबोसोमल, ओके, rRNA वो जो आपका है वो एरिया कैसा है, वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को। जो भी आपका ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस हो जाता है, ओके, mRNA में कंप्लीट हो गया, ओके, टेम्पलेट बन गई है, देन उसका जो उसमें से जो प्रोटीन जो बनता है वो आपका कहाँ बनेगा, वो राइबोसोम्स में बनेगा। ओके, ओके, एंड इट कंपोज ऑफ rRNA एंड प्रोटीन्स, एंड इट कंप्राइज ऑफ टू सब यूनिट्स। टू सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, first one is a 30 as and another one is a 50 as. Okay, and next one is a inclusion body. Okay, inclusion body, you know about inclusion body? Anyone? What is the inclusion body? Anyone? अगर आता है तो यस या फिर आंसर कीजिए, अगर नहीं आता तो मैं आपको आंसर करूंगी। ओके, ओके, गुड, गुड दर्शना। ओके, ओके, इंक्लूजन बॉडी सुन के ही पता चलता है इंक्लूजन मीन्स कि समथिंग इज इंक्लूडेड दैट बॉडीज। ओके, इंक्लूजन बॉडी जो इसको इट्स इसका जो अनदर नेम है वो है स्टोरिंग बॉडी भी बोल सकते हैं, स्टोरेज बॉडी। ओके, ये क्या रहेगा, जो भी आपका जो है न्यूट्रिएंट्स है वगैरह, वो क्या करता है, वो स्टोर करता है। वैसी बॉडी जो होती है स्टोरेज बॉडी, उसे इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। ओके, इंक्लूजन इज इट्स समथिंग इंक्लूडेड इनसाइड द बॉडी। ओके, कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसा कि आपको पता है कि वो क्या है, हर टाइम इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स जो है अवेलेबल नहीं होता है, सो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो स्टोरेज जो बॉडी है इंक्लूजन बॉडी उसमें स्टोर करके रखता है। जब ऐसा कोई टाइम आए जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, सो उस टाइम पे वो यूटिलाइज करता है उस स्टोर्ड एनर्जी या फिर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को। ओके, लाइक इसके अलावा बहुत सारे जो है इंक्लूजन बॉडी है, लाइक एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड, ओके, पॉलीहाइड्रोब्यूटेरिक एसिड ग्रेन्यूल। ओके, फिर इसके अलावा है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ओके, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो रहेगा वो किसका रहता है, तो पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स रहता है। ओके, एंड इसके अलावा है सल्फर इंक्लूजन बॉडीज। ओके, गैस वैक्यूल्स, इट्स ऑल are inclusion body. Okay, and it's arranged inside the bacterial cell. Okay, and ओके, इसका जो अलग फंक्शन जो रहेगा जैसा कि बताया, एग्रीगेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस ऑफन नीडेड बाय द सेल। ओके, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा सो वो यूटिलाइज करेगा उस स्टोर बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड मे और मे नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, अलाउ द सेल्स टू गो फॉर लॉन्ग पीरियड एब्सेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जब भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा सो वो इजीली वहां से जो भी स्टोर फूड रहेगा या फिर स्टोर न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो इजीली वहां पे कंज्यूम कर सकता है और खुद को लॉन्ग टाइम के लिए वो सरवाइव कर सकता है उस एनवायरनमेंट में। ओके, ओके, डन। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया बैक्टीरियल एनाटॉमी। ओके, दिस आर द समरी ऑफ today's session. Okay,
आप 2 मिनट ये देख लो, जो चीज मैंने एक्सप्लेन की वही है, सिर्फ ओवरऑल जो प्रोसेस था, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, उसका फंक्शन क्या है और उसका रोल क्या है, वो सिर्फ इस समरी में दिया हुआ है, सिर्फ आप एक बार देख लो। लाइक फर्स्ट जो है प्लाज्मिड, जैसे कि बताया, इट्स अ स्मॉल डीएनए which is a which can help to replicate independently. Okay. And pili, a thin fiber on the outside structure of the cell which made up of protein. Pili help to attach to the specific surface or other cells, can help bacterium. Okay. Next one is a ribosomes, are molecule which synthesize protein, are found in cytoplasm. And then cytoplasm का क्या है? तो it is everything found inside the plasma membrane, the cellular structures. Okay. And then plasma membrane, it is the outer covering of the cell, and it is regulate what can enter and exit the cells. Cell wall provide the protection of the cells, and it's help to maintain the cell shape and prevent from dehydration. Okay. And then next one is a capsule. It's a sticky and help to attach to the surface in to the environment. Okay. And bacterial flagellum, it can help to movement of the cells. And nucleate, यानी कि circular DNA. Okay, circular DNA, this where DNA is it's a genetic material. Okay, ये जो रहेगा वो क्या करेगा, genetic material information ट्रांसफर करेगा. ओके, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और जो भी प्रोकैरियोटिक में जो सेल्स रहेगा वो सर्कुलर शेप में रहेगा. ओके, डन. ओके, मेरी तरफ से डन है. किसी को कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो. Okay, ma'am. Students, if you have any questions, you can comment in the comment section. If you have any kind of question regarding today's session, you can comment in the comment section. Otherwise, you can just you can just comment yes in the comment section if you have understood today's session. If you have any queries, so ask me. Okay, so thank you, ma'am, for this informative session. And Okay, thank Amit welcome. and Amit, and you can now put the attendance link in the comment section. I request everyone to please fill the attendance form. No one is allowed to leave the meeting without filling attendance form. Please fill the attendance form so that we can provide these topics, these PowerPoints to you also. Without filling the attendance form, you won't get it. I request everyone to please fill the attendance form, then leave the meeting. And those who have filled the form, they can leave the meeting.
So Amit, now you can stop the meeting. I think all have filled the attendance form.